Hello student, welcome to chemistry class. As you know that student we have started division of D block elements and F block elements, and also I have started the introduction. In last video I have given introduction of D and F block elements and some properties and electronic configuration of D block element has been also given. Now today we will see the general properties, physical properties of the D block elements. I have also discussed about the atomic and ionic size, but today we will continue with from the ionic side, atomic and ionic size, atomic and ionic size. Okay, when we move from left to right in any series, atomic size decreases with increase in atomic number, and this decrease in size is regular. This decrease in size is regular because last electron enter in the D subcell and nuclear charge increases with the increasing number of electron in D subcell. Student, you know that transition elements which belong to the D block, they have two outermost cell incomplete. Two outermost. One is outermost and other is penultimate. Okay. Here we will see that in any period in a D series, if we move from left to right, atomic size regularly decreases with increasing atomic number. Why it occurs so? Because last electron enter into the D subcell, and due to which nuclear charge also increases. This is the reason why we see the regular decrease in size of atomic size of transition element. Okay, let's see here. Atomic size and ionic size and ionic size decreases from left to right to right in D series, in B series, with increasing atomic number regularly. Okay, regularly. There is a regular decrease in size. Why it occurs? Reason. What is the reason behind this? Reason is that because last electron enter into
D subcell and nuclear charge also increases. ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो है एटॉमिक साइज रेगुलरली कम होती जाती है। लेकिन लास्ट में अगर हम जब जाएं, जो हमारा किसी भी डी सीरीज का जो लास्ट ग्रुप है, उस लास्ट ग्रुप में ऐसा नहीं पाया जाएगा। क्यों? जो लास्ट किसी भी सीरीज के जो लास्ट एलिमेंट है, जैसे 3D सीरीज का जिंक, 3D सीरीज का जिंक और 4D सीरीज का कैडमियम, 5D सीरीज का मरकरी, इनमें जो है कि इंक्रीज इन साइज जो है कि बहुत ही मीन्स डिक्रीज इन साइज नहीं मिलती है, इंक्रीज इन साइज मिलता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? वहाँ पे डी सबसेल पूरी तरह से भर जाती है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है, इसलिए साइज क्या होती है? इंक्रीज करती है। इन द लास्ट ऑफ सीरीज, इन द लास्ट ऑफ सीरीज there is a small increase, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, there is a small increase in size, due to very small increase in size due to repulsion, due to electrostatic repulsion और electronic repulsion, and in these elements D subcell is also completely filled, ओके। तो हम लास्ट में सीरीज में जाते हैं, जैसे लास्ट में 3D सीरीज में हमारा जिंक आता है, उसके पहले कॉपर है, तो कॉपर का भी डी कंप्लीट भरा हुआ है, एक्सेप्शन है। और इसके अलावा जो है कि जिंक का भी कंप्लीट भरा हुआ 3D10 4s2। अब वहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिससे साइज़ थोड़ी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के रूप में, रीजन एसर्शन के रूप में आया हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज डाउन द ग्रुप। हम जानते हैं कि क्या होता है? बढ़ता है, मगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये इंक्रीज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण सिमिलर हो जाती है। नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। एटॉमिक एंड आयनिक साइज increases from 3D series to 4D series
4D series, 3D series to 4D series, but the radii of third transition series, third or 5D series, 5D series elements virtually the same, due to lengthenoid contraction, due to the lengthenoid contraction. ओके, हम यहाँ पे जो है कि 3D to 4D सीरीज में साइज इंक्रीज करते हुए देखते हैं, लेकिन थर्ड जो सीरीज है, थर्ड सीरीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जिसको हम 5D सीरीज कहते हैं, उसमें जो ये इंक्रीजमेंट होता है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लगभग वर्चुअली एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो सेम होती है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ पे पुअर शिल्डिंग होने लगती है। तो पुअर शिल्डिंग ऑफ 4F, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं पुअर शिल्डिंग ऑफ 4F। ओके, 4F की पुअर शिल्डिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे साइज में उतना हमें इंक्रीजमेंट नहीं दिखाई देता है, लगभग सेम होती है। और कभी कभी पूछा है कि हॉफियम और जिरकोनियम दोनों की एटॉमिक साइज बराबर क्यों होती है। हैव यू नोटेड दिस? Hafnium and zirconium have same atomic radii. Explain what is the reason behind this? इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है कि give the reason of same size of zirconium and hafnium। ओके, क्या रीज़न है कि जिरकोनियम और हाफियम के साइज़ बराबर होती है। तो साइज़ बराबर होने के पीछे सिंगल रीज़न है। क्या रीज़न है? आंसर हो जाएगा दिस इज ड्यू टू lengthenoid contraction। ओके, ऐसा ड्यू टू lengthenoid contraction के कारण ऐसा होता है। ठीक है, lengthenoid contraction के कारण ऐसा होता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने दो क्वेश्चन दिए, ये किसी भी सीरीज के लास्ट में जब जाते हैं तो साइज इंक्रीज करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि उनका डी सब सेल भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। और दूसरा क्वेश्चन हमने दिया कि हाफियम और जिरकोनियम के साइज बराबर होती है, किसके कारण? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। एक क्वेश्चन हमने और बताया यहाँ पे मिल सकता है कि 3D सीरीज़ से 4D सीरीज़ तक तो साइज में हमें इंक्रीज डाउन द ग्रुप मिलता है,
लेकिन 5D सीरीज की ओर जब बढ़ते हैं तो इंक्रीज इन साइज सिग्निफिकेंट नहीं होती है, वहाँ पे साइज लगभग सेम होती है। तो उस साइज के सेम होने के पीछे रीज़न क्या है? उस साइज के सेम होने के पीछे का रीज़न है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पीज हम लोग सभी जानते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ओके। और इसमें अगर हम ट्रेंड देखें तो जैसा हम लोगों ने एस ब्लॉक में पढ़ा था या जैसा हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कि कम होती जाती है, सीरीज में जाते हैं तो बढ़ती जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम जब भी ट्रांजिशन सीरीज पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए हमेशा कि यहाँ पे डी सबसेल भी इनकम्प्लीट है और एस सबसेल यानी कि 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, इसलिए इनके आयनाइजेशन एंथैल्पीज में हो चाहे अदर प्रॉपर्टीज़ में हो चेंजेस बहुत डिफरेंट दिखाई देते हैं फ्रॉम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में किस तरह का चेंज होता है उसको हम देख लेते हैं। ओके, तो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन जान ली कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी हमें देनी होती है उससे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनाइजेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम किसी भी सीरीज में इन सीरीज when we move from left to right, ionization enthalpy increases with increasing nuclear charge। ओके, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटॉमिक नंबर के साथ साथ, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है, बट नॉट इन रेगुलर मैनर, ट्रेंड, एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं होता है। इस इरेगुलर ट्रेंड के पीछे रीज़न क्या है? इस जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसमें इरेगुलर ट्रेंड के पीछे रीज़न है इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल। द इरेगुलर ट्रेंड in first ionization enthalpy
is due to having incomplete outermost cell. Okay, due to having incomplete outermost cell. पहला तो रीजन ये हो गया कि इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट सेल होते हैं, इस वजह से जो है कि यहाँ पे आयनेशन इंथैल्पी जो है कि बढ़ती जाती है, मगर इरेगुलर होती है। इरेगुलर में क्योंकि डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है, और इसके अलावा एक भी इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करते हैं तो 3D और 4D सीरीज के 4D ऑर्बिटल की जो एनर्जीज हैं वो अल्टर हो जाती है ना। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन किसी में डी सब सेल में जाते हैं, किसी में एस सब सेल में जाते हैं। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकले, कभी ऐसा भी हो सकता है अंदर के सेल से निकले, तो अल्ट्रेशन आ जाता है एनर्जी में, अल्ट्रेशन हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, द रिमूवल of an electron alter the relative energies of4s and 3D orbital. Okay, 3D orbitals, 4D ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल एनर्जी अल्टर हो जाती है। तो इसके पीछे वही हमने रीज़न लिखा कि जो दो आउटर मोस्ट सबसेल जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं, तो इसकी वजह से जो है कि हमें रेगुलर ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये अच्छे से समझ में आ गया कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनेशन इंथैल्पी बढ़ती है न्यूक्लियर चार्ज के साथ, लेकिन ये जो एनर्जी का बढ़ना है वो एक सिग्निफिकेंट केमिकल सिग्निफिकेंट उसका कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है वो किसी रेगुलर ट्रेंड में नहीं बढ़ती है। तो रेगुलर ट्रेंड में ना बढ़ने के पीछे कारण क्या है? रेगुलर ट्रेंड में ना बढ़ने के पीछे का कारण है कि वहाँ पे आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से 3D और 4D की एनर्जीज़ में जो है अल्ट्रेशन हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी डी सीरीज में हमें कोई रेगुलर ट्रेंड हमें नहीं मिलता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है पता ही है। आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन what type of charge develop on the how many charge develop on the element, that is the oxidation state. Okay, now we will see oxidation state. Oxidation state. Okay, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? ट्रांजिशन एलिमेंट so variable oxidation state
ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये जो डी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू इनकम्प्लीट outermost सेल इनकम्प्लीट होने की वजह से यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। हमें जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है केवल वो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में मिलती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट is observed in first transition series। पहली जो ट्रांजिशन सीरीज है उस ट्रांजिशन सीरीज में, पहली ट्रांजिशन सीरीज में हमें ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे किस किस एलिमेंट के क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी किसी भी पी ब्लॉक या एस ब्लॉक में हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ कोई इनकम्प्लीट सेल नहीं है। तो पहला हमारा है स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ओके, अब इसमें से हमारे जो आउटर लास्ट एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अगर हम आएंगे तो +2 हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। ठीक है, निकेल और कॉपर और जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन हमारा जो ये कोबाल्ट है और आयरन है ये +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मैग्नीज है +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद हमारा जो क्रोमियम है +3 +6 शो करता है। मोस्ट स्टेबल स्टेट लोअर होती है, +3 और +6 शो करता है। इसके बाद तो वेनेडियम +5, टाइटेनियम +4 और या फिर +3। तो मैक्सिमम जो मिडिल पोर्शन है उस मिडिल पोर्शन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे हाई होता है। वो क्या होता है सब? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट so oxidation state, lower oxidation state, so just a minute, यहाँ पे हम इसको और छोटा कर देते हैं।
Transition metal in lower oxidation state are stable. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं एंड यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ओके, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पे और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखेंगे कल की क्लास में, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ट्रेंड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटसेट्रा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।